Good morning, students of class 10. Good morning to all of you. So here in this video we will see the solution of questions which we have faced in our first test. There were 10 multiple choice questions, but the time given was 45 minutes because you should utilize your time for the first time solving. Then on second time solving you will get this paper solved in 20 minutes. Believe me, the first question was the graphs of 2x plus 3y minus 6 is equal to 0, 4x minus 3y minus 6 is equal to 0, x is equal to 2 and y is equal to 2 upon 3 and y is equal to 2 upon 3 intersects in. आपको ये बताना था कि ये सभी ग्राफ्स जब आप ड्रॉ कर लेंगे ऑन एक्स वाई प्लेन तो वो कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट होंगे या एक दूसरे को कट करेंगे. सो स्टूडेंट्स, बिना कुछ सोचे समझे आपको ग्राफ ड्रॉ करना होगा, क्योंकि आप ज़्यादा सोचने से आपका टाइम वेस्ट होगा बस, और कुछ नहीं होने वाला. So we need at least 2 points. So on this graph, if we put x is equal to 0, then y will become 2. So 0, 2 is 1 point on this graph. So represent 0, 2. 0, 2 is 1 point. Now put y is equal to 0. So on putting y is equal to 0, this term will be 0, 2x is equal to 6 and x is equal to 3. The point will be 3, 0. So 1, 2, 3, 0 is this point. Join these 2 points. This is simply graph of 2x plus 3y minus 6. Okay, this indicates 2x plus 3y minus 6 is equal to 0. Now for the second graph, we will put x is equal to 0 and will get y is equal to minus 2. Put x is equal to 0, this term becomes 0, minus 3y is equal to 6 and y is equal to minus 2. Point is 0, minus 2. So 0, minus 2 will go here. This is 0, minus 2 and put y is equal to 0. You will get 4x is equal to 6 or x is equal to 6 upon 4, that is 3 upon 2, 1.5. X is 1.5 when we are putting y is equal to 0. So the point will be somewhere here 1.5, 0. So on joining these 2 points, we will get the graph of second line, that is 4x minus 3y minus 6 is equal to 0. आपको इसको रफ में करना है बिकॉज MCQ क्वेश्चन है. तो दो ग्राफ अपन ने ड्रॉ कर लिए. अब ये तो सिंपली आप देख सकते हैं x इज इक्वल टू 2 का ग्राफ, x इज इक्वल टू 2 पे पहुँचिए आप. ये 1 है, ये 2 है, ये 1 है और ये 2 है, ये 3 था बिकॉज इस पर 3, 0 आया था पॉइंट. तो इस x इज इक्वल टू 2 पे एक ऐसी लाइन खींच दीजिए. x इज इक्वल टू 2 पे एक ऐसी लाइन खींच दीजिए जो कि y एक्सिस के पैरेलल हो. दिस इंडिकेट्स x इज इक्वल टू 2. इस पे आप कहीं भी जाएं, दिस इज 2, 1, 2, 2, 2, 3 and all the points you will get x is equal to 2. Y is equal to 2 upon 3 will go somewhere between 1 and 2. 2 upon 3 is less than 1. So the graph will be y is equal to, this is x is equal to 2, this is y is equal to 2 upon 3. So you can easily see there is only one intersection point. ठीक है, पहले क्वेश्चन में आपको रोका जा सकता है. बड़ा लेंदी क्वेश्चन पेपर में भी ऐसे सेट किया जा सकता है कि आप इसी पर रुक जाओ, इसमें ज़्यादा टाइम बर्बाद कर लो. लेकिन अगर आपको हिट नहीं कर रहा है तो आपको इसको स्किप करके दूसरे क्वेश्चन पे पहुंचना चाहिए. पहले 1-2 क्वेश्चन बड़े होने का ये मतलब नहीं है कि सारे क्वेश्चन में ऐसे 5 मिनट्स आपको लगने वाले हैं. बिल्कुल नहीं लगेंगे, लेकिन आपको अटकाया जाता है एक स्पेसिफिक पॉइंट पे, या तो शुरू में या बाद में. ठीक है, तो आपको ज़्यादा दुखी नहीं होना है अगर पहला क्वेश्चन आपको डिफ़िकल्ट लग रहा है, ज़्यादा खुश नहीं होना है अगर पहला क्वेश्चन आपको इजी लग रहा है, क्योंकि बाद में भी ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं.
तो पहला क्वेश्चन सभी को क्लियर हो गया होगा, इसका आंसर है एग्जैक्टली ऑन 1 पॉइंट। सो स्टूडेंट्स, नाउ वी विल टेक सेकंड क्वेश्चन। द सेकंड क्वेश्चन वाज इन कवरिंग ए डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर। जो लोग वीडियो देख रहे हैं, पेपर नहीं है, राइट डाउन द क्वेश्चन। इन कवरिंग ए डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर Amit takes 2 hours more than Suresh. Amit takes 2 hours more than Suresh. If Amit doubles his speed, he would take 1 hour less than Suresh. Find Amit's speed. तो let Amit's speed is equal to x. जो फाइंड करना है कम से कम उसको तो लेट कर लेंगे, x kmph। इसके बाद एक दूसरा है सुरेश। तो दो लोग अलग अलग हैं, उनमें टाइम का वेरिएशन आपको गिवन है, तो अलग से मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, y किलोमीटर पर आवर। सो टाइम टेकन बाई अमित को अगर मैं TA लिखता हूँ, सो दैट इट विल बी डिस्टेंस अपॉन टाइम 30 अपॉन x आवर्स। एंड टाइम टेकन बाई सुरेश को अगर मैं TS लिखूँगा, देन दिस विल बिकम 30 अपॉन y। ओके, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब साफ साफ शब्दों में लिखा है अमित टेक्स 2 आवर मोर देन सुरेश। अमित टेक्स 2 आवर्स मोर देन सुरेश। ओके, द फर्स्ट इक्वेशन इज रेडी। 30 अपॉन x माइनस 30 अपॉन y इज इक्वल टू 2। अभी आपको कुछ सोचना नहीं है, गैर इसमें सॉल्विंग ऐसे उल्टी सीधी होगी। MCQ में दिया है तो डायरेक्ट सॉल्विंग होगी। देखिए कैसे। इफ़ अमित डबल्स हिज स्पीड, न्यू स्पीड ऑफ अमित, new speed of Amit, it will be, new speed of Amit will be 2x because he doubles his speed. Now time taken by Amit TA dash, new time taken by Amit, distance तो सेम है बट स्पीड डबल हो गई, तो 15 अपॉन x आवर्स अब उसको लगने वाले हैं। अब ये जो अमित का टाइम है दोबारा वाला, जब उसने स्पीड इंक्रीज कर दी, ही वुड टेक 1 आवर लेस देन सुरेश, तो अब उसको सुरेश से 1 घंटा कम लगने लगा। मतलब कि अब इक्वेशन ऐसे लिखी जाएगी, टी सुरेश माइनस टी अमित, दोबारा में TA डैश लिख रहा है इसको, इज इक्वल टू 1 आवर। तो टी सुरेश इज 30 अपॉन y माइनस टी डैश अमित इज 15 अपॉन x इज इक्वल टू 1। दिस इज सेकेंड इक्वेशन। So on adding first and second equation, this 30 upon y and 30 upon y will be cancelled. On adding both of these two equations, first plus second, you will get this 30 upon y to be cancelled by this 30 upon y. And remaining terms are 30 upon x minus 15 upon x and 2 plus 1, which will become, on taking LCM, x 30 minus 15, 15 upon x is equal to 3. So on solving you will get 3x is equal to 15 or x is equal to 5 kilometer per hour. This is speed of Amit. यही शायद आपको फाइंड करना था। देन A ऑप्शन इसका करेक्ट है, फर्स्ट का B ऑप्शन वॉज करेक्ट। ठीक है, तो जल्दी से और स्पीड में आप इस सॉल्यूशन को समझ लीजिए। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप एक फॉर्मूला याद कर लीजिए, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक। थर्ड क्वेश्चन स्टूडेंट्स, देयर आर ओनली 10 क्वेश्चंस इन द पेपर, यू शुड ट्राई देम बाय योरसेल्फ। इन फर्स्ट टाइम you may take lot of time, but if you keep on practicing you will definitely get the half time. So the third is find the value of k for which the system kx plus 3y is equal to 7 and 2x minus 5y is equal to 3 has no solution. तो स्टूडेंट्स क्या है कि क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए या सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए आपको उससे रिलेटेड फार्मूलाज, थ्योरीज, कॉन्सेप्ट्स सब पता होनी चाहिए. फॉर नो सॉल्यूशन वी हैव a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2. फॉर टू लीनियर इक्वेशंस दिस a1/a2 is equal to b1/b2 but not equal to c1/c2. There will be no solution. So a is the coefficient of x, that is k/2,
is equal to 3 upon minus 5 but not equal to 7 upon 3. We will get the solution. Minus 5k is equal to 6, k is equal to minus 6 upon 5, or taking first and last term we will get 3k not equal to 14 and k is not equal to 14 upon 3. दो आंसर्स आएंगे आपके. k is not equal minus 6 upon 5 विजुअल है, हाँ दिख जाएगा, थोड़ा सा ऐसे देख लीजिए, ठीक है. एंड k इज़ नॉट इक्वल टू 14 अपॉन 3. ठीक, ये आपको क्लियर होना चाहिए. तो सॉल्यूशन आपके सामने है, ये आपको डी ऑप्शन में देखने के लिए मिल रहा है. सो डी ऑप्शन वॉज करेक्ट. चलिए लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4. अब देखिए आप एक 2 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व होने लगे हैं, तो हर एक क्वेश्चन 5 मिनट्स का नहीं रहता है. 4th क्वेश्चन है, इफ़ 1 upon x minus 1 upon y is equal to 1 upon z, then z will be. ये तो क्लास 5th 6th का क्वेश्चन आ गया. सिंपली आपको एलसीएम लेना है, इसका एलसीएम लेना है, देन रेसिप्रोकल ऑफ दिस विल बिकम z. 1 upon z का रेसिप्रोकल z. दिस इज एलसीएम इज एक्स वाई, x टाइम्स डिवीजन y माइनस y x is equal to 1 upon z, or you can write z is equal to xy upon y minus x. So you will get this in the option number D. So 4th D is correct. Okay students, question number 5 was an easy question, but you can take more time if you don't know the values of root 2 and root 3. If you knows the values of root 2 and root 3, then this question will be done very easily. अवेलेबल ऑप्शंस में से अगर मैच नहीं कर रहा है तो हो सकता है प्रिंटिंग मिस्टेक है. रूट 2 इज़ समथिंग 1.414 एंड रूट 3 विल बी 1.732. इनके बीच में रेशनल नंबर बताना है तो ध्यान रखिए कि 1.4 से बड़ा तो होना ही चाहिए. दैट मे बी 1.432, ये बड़ा है तो इनके बीच में हो जाएगा. ओके, और ये वैल्यू लॉन्ग डिवीजन मेथड से आती है, तो आपको डायरेक्टली याद है तभी आप सॉल्विंग जल्दी कर पाएंगे, अदरवाइज़ वो टाइम आपको लग जाएगा. तो इसका ऑप्शन नंबर इसका ट्रू होने वाला था, वो था ए. अगर उसमें लिखा होता 1.432, तो प्रिंटिंग मिस्टेक के लिए आपको बोनस मार्क मिल जाएगा. ठीक है, बस आपको समझना ये है कि इनका डेसिमल एक्सपेंशन आपको लिखें 2 और 3 प्लेसेस तक, बिटवीन दीज ऑप्शन में से सिलेक्ट करके टिक कर दें. अब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, देन दिस विल नॉट बी आंसर. ये 1.893, ये 1.732 से ज़्यादा है. 1.243, दिस इज लेस देन दिस, इनके बीच में ही नहीं है, देन एक कोई ऑप्शन हो जाता. ओके, क्वेश्चन नंबर 5, इसका बोनस मार्क मिल जाएगा ऑप्शन में से. क्वेश्चन नंबर 6, अगेन एन इजी क्वेश्चन. इफ 4x to the power 4 minus 3x cube minus 3x square plus x minus 7 is divided by 1 minus 2x is divided by 1 minus 2x, then find remainder. ओके, अगेन इजी क्वेश्चन है. क्या करना पड़ता है, जिससे डिवाइड करना है, इससे अगर हम x की वैल्यू फाइंड करके अगर पुट कर देते हैं देन डायरेक्टली रिमाइंडर मिलेगा. 1 minus 2x is 0, then 1 is equal to 2x, 1 is equal to 2x and x is equal to 1/2. Put in given polynomial. So on putting in given polynomial, you will got the remainder, that is 1 upon 2 to the power 4 minus 3 into 1 upon 2 whole cube minus 3 into 1 upon 2 whole square. Take care of plus minus, plus 1 upon 2 minus 7. So on solving this,
you will get the answer. So just try to solve it. 4 multi 1 upon 16 minus 3 multi 1 upon 8 minus 3 multi 1 upon 4 plus 1 upon 2 minus 7. तो 4 4 जा 16, 1 upon 4 minus 3 upon 8 minus 3 upon 4 प्लस 1 upon 2 minus 7. LCM ले लो इसका, 8 आ जाएगा. ठीक है, सॉल्विंग आपकी अपनी होती है, आप यहीं LCM ले सकते हैं, आपका मन है. 8 4 2 जा 8 माइनस 3 4 2 जा 8 2 4 जा 8 8 7 जा 56 8 7 जा 56. So here you will get 6 and this is minus 6, so these terms will be cancelled. 56 minus 3 is minus 59 and answer is minus 59 upon 8. So the remainder will be minus 59 upon 8. B option is correct. B option is correct. Okay students, again अब 6 क्वेश्चंस आपके हो गए हैं और लगभग अपन को 15 मिनट्स लग चुके हैं, जबकि पहले ही 2 क्वेश्चन में हम लोग 10 मिनट लगा चुके थे. तो अब आप देख रहे होंगे कि लगभग 1.5 मिनट्स में 2 मिनट्स में क्वेश्चन होते जा रहे हैं. अगेन आपका टाइम टेकिंग क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 6. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6. स्टूडेंट्स क्वेश्चन सिलेक्ट करके ऐसे डाले गए हैं कि आपसे गलतियां हो, ताकि आप बोर्ड एग्ज़ाम में कोई गलती ना करें. अगर यहाँ आपको इजी क्वेश्चन दे दिए जाएंगे, आप बड़े खुश हो जाएंगे 10 आउट ऑफ 10, बट वो खुशी आपकी क्षणिक होगी, परमानेंट नहीं होगी. लेकिन बोर्ड एग्ज़ाम में जब आप 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स का अटैम्प्ट करके आएंगे बिल्कुल सही, तो फिर आपकी वो खुशी शायद परमानेंट हो जाए. सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ परमानेंट खुशी, डोंट गो फॉर टेम्पररी और क्षणिक खुशी. Now question number 7 is, how many times graph of polynomial f(x) is equal to x cube minus 1 will intersect x axis. ये पूरा क्वेश्चन मैं लिखूंगा, जो लोग वीडियो देख रहे हैं पॉज करके अटेम्प्ट करें. अभी तक जो लोग होशियार बन रहे हैं वो पॉज करके इसको अटेम्प्ट करें. इफ f(x) is equal to x cube minus 1 will intersect, this graph will intersect x axis 0 time 1 time 2 time 4 time, 0 time 1 time 2 times and D option is 4 times. तो कुछ लोग तो जल्दबाजी में ऐसे आंसर देते हैं कि जितनी पावर है उतने इसके नंबर ऑफ जीरोज़ होने वाले हैं. बिल्कुल ये बात सही है, इसके नंबर ऑफ जीरोज़ होने वाले हैं 3 नंबर ऑफ जीरोज़ होंगे. उसके साथ ये भी याद किए रहते हैं कि ये जितनी बार एक्स एक्सिस को कट करेगा ग्राफ, वो उसके नंबर ऑफ रूट्स होंगे. लेकिन जो कट करता है दैट आर रियल रूट्स. जो ग्राफ कट करता है वो रूट्स कैसे होते हैं? रियल रूट्स. एक इमेजनरी रूट भी होता है जब डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आता है. तो इसमें वही चीज़ इन्वॉल्व है. हम लोग सुन के मतलब सॉल्व करके देखते हैं. ऐसे सुनने से आपको थोड़ा कम समझ में आएगा, तो इसके रूट्स फाइंड करके देखते हैं. द फंक्शन इज एक्स क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0 लिखेंगे फॉर फाइंडिंग जीरोस. दिस इज ए क्यूब माइनस बी क्यूब, दैट इज ए माइनस बी. ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0. So here x minus 1 is equal to 0 gives us x is equal to 1, but x square plus x plus 1 is equal to 0 has discriminant negative. That is minus 3. If discriminant is negative, then these two roots will be imaginary. These two roots will be imaginary roots, and graph cuts on the real values of x. So this graph will intersect x axis only one time. Option B is correct. ठीक है स्टूडेंट्स, ज़्यादा जल्दबाजी नहीं दिखानी है. आपको 3 आ रहा है आंसर में, तो 3 तो ऑप्शन में कहीं है ही नहीं.
मान लीजिए यहाँ पे 3 होता तो आप तो 3 लगा के आ जाते हैं। तो थोड़ा सा उसको चेक करें, एक नंबर फ्री का नहीं है। 99, 98, 97 कई लोगों के आते हैं, बट 100 आउट ऑफ 100 उसी के आते हैं जो इन बातों का ध्यान रखता है। सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ दीज स्मॉल थिंग्स एंड नाउ वी आर गेटिंग लेट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, वेरी इजी क्वेश्चन अगेन। क्वेश्चन नंबर 8, the question number 8 is find the roots of equation 5x square minus 6x minus 2 is equal to 0. find its roots। इसके रूट्स फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट ही फाइंड कर लिया करो। मिड टर्म स्प्लिट आपको दिख नहीं रहा है कि 10 के ऐसे के घटाने पे 6 नहीं दिखा तो बस डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करो। क्वाड्रेटिक फार्मूला आया ही इसलिए था क्योंकि मिड टर्म स्प्लिट हर जगह वर्क नहीं कर रहा था। फॉर फाइंडिंग रूट्स, -6 स्क्वायर -4 इंटू a is 5 and c is -2, that is 36 plus 20 40 76. Roots will be according to Sridharacharya formula -b plus minus root d divided by 2a, that will be minus b is plus 6, okay, minus plus minus root d is root 76 divided by 2 into a is 5. Try to solve it. 76 can be written as 19. 76 can be written as 19 multiplied by 4 divided by 2 into 5. So this 2 will be common. Here we will get 3 plus minus under root 19. ये जो 4 का 2 है that is common. Answer is 3 plus minus under root 19 upon 5. The roots are 3 plus minus under root 19 upon 5. So again option number A is true. 8th A. Okay. Now question number 9 is very easy question. One of the most easiest question of this paper. You have to find only the discriminant. In the question number 9, you have to find only discriminant in question number 9. 3x square minus 2x, 3x square minus 2x and plus 1 upon 3. ये क्वेश्चन था। डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, दैट इज -2 स्क्वायर -4 इंटू a is 3 and c is 1 upon 3. These two terms will be cancelled and here we will get 4 minus 4, that is 0. So question number 9's answer is D, 0. लास्ट क्वेश्चन, अगेन इजी क्वेश्चन के साथ पेपर ख़त्म हो रहा है आपका। क्वेश्चन नंबर 10 है AP से। फर्स्ट 5 चैप्टर्स के क्वेश्चन इंक्लूड किए थे हम लोगों ने। फाइंड द 10th टर्म T10 वी हैव टू फाइंड ऑफ द गिवन AP. A is 2 and D is 5. That is T2 minus T1. T10 is written as A plus 9D. Using the formula of nth term, and A is 2 plus 9 into D is 5. So 9 5 is 45 plus 2 47 will be the right answer and option B is true. So स्टूडेंट्स, आपने देखा कि लगभग हम लोगों को 20 से 25 मिनट लगे इस पूरे पेपर को सॉल्व करने में, जबकि मैं सब कुछ एज इट इज़ अच्छे से लिख रहा था, आपको समझाता भी जा रहा था। तो अगर आप भी इनको प्रैक्टिस करेंगे तो विद इन 15 मिनट्स आप इनको कर पाएंगे, क्योंकि आपको समझाना नहीं है फिर किसी को। तो किसी क्वेश्चन में अगर ज़्यादा टाइम लग रहा है देन स्किप दैट क्वेश्चन, डोंट गेट इन्वॉल्व्ड इन दैट क्वेश्चन फॉर टाइम वेस्टिंग ओनली। अगर केवल समय बर्बाद हो रहा है, आपको नहीं लग रहा है कि आएगा, तो इसको स्किप वहीं कर दिया करो। टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगेन मिलते हैं अगले वीडियो में साइंस के 10 क्वेश्चंस के साथ, जिसमें आपको सॉल्यूशन बताया जाएगा आपके टेस्ट पेपर का।
तब तक आप इन सभी क्वेश्चंस को एक बार अच्छे से अब अपने मन से लगा के प्रिपेयर कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।